Hello everyone, you're watching ACIT for CA Foundation. My name is Param and I'm going to teach you all the courses in the CA Foundation. We have started with the Chapter 4, Paper 4, that is Business Economics, Chapter 2 and Unit 2, which is the Consumer Behavior. तो ये जो आज का lecture है, that is the third lecture on the consumer behavior. आज हम बात करेंगे indifferences curve analysis के बारे में. So before even we start with the indifferences curve analysis, just we'll go a little bit background, थोड़ी सी इसकी history के बारे में just बात कर लेते हैं, क्योंकि a question can come from there too. तो जब cardinal utility theory आई थी, it was came up with a classical economist, है ना? उन्होंने ये कहा कि utility जो है that can be measured in numbers. तो जो modern economists थे, ये came up with a heavy criticism. उन्होंने कहा no, numbers can this utility cannot be measured in numbers. हम इसको preference दे सकते हैं, एक order दे सकते हैं, एक ranking दे सकते हैं, but हम इसको measure नहीं कर सकते in any terms, right? So they heavily criticize the cardinal utility theory. So they said इसमें actually this was started by Edgeworth करके एक British economist थे, and he was the one who initially started criticizing the ordinal utility. फिर वो indifferences curve analysis के ऊपर उन्होंने start किया, but later on it was the what is the Allen and Hicks थे जिनका नाम indifferences curve analysis के साथ जुड़ा. So अगर question pop up होता है कि who was the one, then you really need to know it's Allen and Hicks, right? So question आप इसको miss नहीं करना. चलो let's start with the indifferences now. कि indifferences होता क्या है? Indifferences का मतलब ये कि okay, एक schedule बनाते हैं, उसके through I'll try to explain to you. So मान लेते हैं कि कोई दो कमोडिटी हैं, कोई आइटम्स हैं, let's say just for a easy ताकि आप लोगों को समझ आए, right? So I'm not using something extraordinary word here. So let's say अगर हम simple terms में ले लेते हैं, ऑरेंज है और एक बनाना है. आप कोई भी दो आइटम्स ले सकते हैं, आप आइसक्रीम चॉकलेट ले सकते हैं, आप चाट एंड गोलगप्पा ले सकते हैं, any single thing, right? So we'll just go with this one first. तो they say जो ordinal utility या indifferences curve utility है specifically, उसने ये कहा कि जो consumer है, the consumer जो consume करता है, if there is two goods, right, उसका जो combination होता है, he is very indifferent in those two, on those combination of those two goods. इसका मतलब indifferences curve analysis का मतलब ही यही है कि okay, अगर दूसरी भाषा में समझते हैं, मान लिया आपके पास दो कमोडिटीज आ गई, राइट? जैसे ऑरेंज और बनानास हो गए. सो मान लेते हैं कि अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, let's say we have 4 combinations, 1 combination, 2 and then 3 and then we have 4 combinations, ठीक है? And we name the first combination as A, we name the second combination B, C, third one and the fourth will be D. तो मान लेते हैं अगर ऑरेंज वो कंज्यूम करता है 1, 2, 3, 4 in different combinations, and let's say banana is 12 here, 6 here, 4 here and 3 here. तो इसका मतलब कहने का कि जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन का हमने नाम दिया A, he is consuming orange 1 and he is having banana 12. तो जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है यहाँ पे, let's say satisfaction को हम कह देते हैं K level of satisfaction. He gets K, he gets K, he gets K here. So B जो combination लिया, अब उसने 2 oranges लिए, 6 banana consume किए, तब भी उसका satisfaction same था जो first combination में था. Same thing happens in the third combination. He is consuming now third orange, banana 4 ले रहा है, तो satisfaction फिर same है, it's K, right? और fourth combination में भी उसने ऑरेंज कंज्यूम किए 4, बनाना कंज्यूम किए 3, तो भी उसका सेटिस्फैक्शन सेम था. अब इसे ये अंडरस्टैंड करो कि जो कंज्यूमर है, राइट, he is very indifferent in these 4 combinations. He can choose either this one, he can choose this one, he can choose this one, or he can choose this one. So he is very indifferent. He can choose either one of those 4 में. उसका जो level of satisfaction होगा, that will be same.
in all those 4 combinations. It's not going to change. So that's why the जो इसका नाम आया वहां से आया कि indifferences curve analysis, because the consumer is indifferent about those combination. I think it's very much clear, pretty easy. अब अगर इसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, it's this table, then it is called indifferences curve analysis, क्योंकि curve draw हो रही है ना, आप उसको रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो instead of schedule. So that was the indifference. तब इसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ में. So this is y-axis, this is x-axis. Let's say we have oranges on the x-axis, banana on the y-axis. तो ये हमने यूनिट्स बना ली. अच्छा, एक चीज को और ध्यान रखना, जब भी आप यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हो, चाहे एक्सिस के ऊपर चाहे वाई एक्सिस के ऊपर, जो भी आप यूनिट लेते हो प्लीज उसकी मेजरमेंट प्रॉपर हो. अगर ये 1 इसका डिफरेंस है देन इट शुड बी 1 ओनली. यहाँ पे हमने 3 का लिया, इट शुड बी 3. ये नहीं है कि पहले 3 ले लिया फिर 2 ले लिया फिर 1 ले लिया. कई बच्चे ये भी गलती करते हैं. सो मेक श्योर कि आपका जो ये यूनिट्स है ये इक्वल प्रोपोर्शंस में हो. तो ड्रॉ करते वक्त प्लस से अगर ऑरेंज उसने 1 लिया फॉर एग्जांपल, लेट्स ड्रॉ दैट, और बनाना था 4, सो इट कम्स अप हियर समवेयर. ठीक है. फिर उसने लिया सेकंड कॉम्बिनेशन था B, दैट इज 2 for 6. Then C combination is 3 for 4, somewhere here. ठीक है. And then 4 for 3. So अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ और उसको ज्वाइन करती हूँ, so this is the combination A, this is the combination B, C and D. To understand, अब देखो जब पहला यूनिट ऑरेंज का कंज्यूम किया तो 12 यूनिट्स जो थी वो बनाना की थी, तो हमको कॉम्बिनेशन ए मिला. तो यहाँ पे अगर हम लिखे 1/12, राइट. दूसरे में क्या है 2/6, 2 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 6 यूनिट्स ऑफ बनाना. तो यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन सेम है, चाहे मैं ए यूनिट कंज्यूम करूं, चाहे मैं बी कॉम्बिनेशन का कंज्यूम करूं, चाहे मैं सी करूं, चाहे मैं डी करूं. ये चारों कॉम्बिनेशंस में मैं कोई भी कॉम्बिनेशन अगर लेती हूँ तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, that is going to be the same, doesn't matter. I'm very indifferent here as a consumer. So that is a graphical representation of the indifferences curve. It's pretty simple. I think it's very easy right now. तो हम इसको indifferences curve analysis कर देते हैं, कह देते हैं. अब इससे आगे चलते हैं to understand more. जो अगर आप ये कहोगे कि मैम ये जो कर्व है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ी स्टीप पहले तो डाउनवर्ड आती है एंड देन इट बिकम्स वेरी लाइक सेटल हो जाती है, स्लोपिंग काइंड ऑफ थिंग. इट्स नॉट वेरी स्टीप एट ऑल, राइट. तो ऐसा क्यों है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. तो इसको हम अब अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई दैट्स हैपेंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. तो पहला तो ये कि आफ्टर दिस देयर इज अनदर कांसेप्ट कम अप व्हिच इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ substitution. Marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution होता क्या? आपने पढ़ा था लास्ट टाइम की marginal rate of utility. Marginal rate of utility से थोड़ा सा ये ऊपर है. It's a broader concept compared to the marginal rate of utility. अब marginal rate में utility में आपने ये पढ़ा था कि जब कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करने लग जाता है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होने लग जाता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा हो चुकी है. जब आपके पास चीज कम होती है तो आपको दिल करता है उसको ज्यादा लेने के लिए, राइट, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए होते. जब आप ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो, मान ली आपने ज्यादा रोटियां खा ली
तो आप सेटिस्फाई फील करते हो, उसके बाद आप ज्यादा खाना नहीं चाहते. सो सेम लॉजिक अप्लाइज लिटिल बिट हियर इन एमआरएस. कहने का मतलब ये है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जब उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की उसकी ऑरेंज की, तो एट दैट टाइम, तो यहाँ पे मैं एक और टेबल में थोड़ा सा ना एडिशन करती हूँ, और मे बी वी कैन जस्ट डिलीट दिस वन बिकॉज यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट. तो यहाँ पे देखो, जब उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया, your it was just starting, so marginal rate of substitution was nil, there was nothing. तो जब यहाँ पे सेकंड कॉम्बिनेशन में आए, so there was a difference of 6, substitute 6 करना पड़ा, क्योंकि जब इस पोजीशन पे बी पोजीशन पे आए हैं, सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑरेंजेस जब एक गेन किया हमने, this one, when we gained one orange, when we wanted one more orange, तो यहाँ पे देखो कितना कितना हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा, और लॉस वी कैन से, ठीक है. सो दिस इज 6, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 यूनिट्स हमको लॉस करनी पड़ी टू गेन 1. तो ये हमको लॉस करना पड़ा टू गेन 1. सो दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हियर, कि हमको 6 यूनिट्स बनाना की लेट इट गो करनी पड़ी, तभी हमको एक यूनिट एक्स्ट्रा ऑरेंज की मिल सकी. मान लिया हमने कहा, ओ बाबा अभी तो हमको और सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे और ऑरेंज चाहिए, मुझे मजा आ रहा था ऑरेंज खा के. सो लेट्स से ही वांट्स वन मोर ऑरेंज. तो जब उसने एक और ऑरेंज लेना था, तो ऑफ कोर्स एक चीज लेने के लिए आपको दूसरी चीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा, राइट. यू कैन हैव बोथ ऑफ देम एट द सेम नंबर, कि आप इसको भी बढ़ाते रहे उसको भी बढ़ाते रहे, तो यू हैव टू लेट गो वन. तो अगर तभी तो कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा. दिस इज एन अजम्पशन हियर, क्योंकि अगर आप इस लॉजिक को निकाल देते हैं, तो फिर जो थ्योरी के assumptions हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो थ्योरी इन इटसेल्फ गोज आउट ऑफ द वे. assumption हम इसके बाद में करेंगे. आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज, ताकि आप समझ पाए ये कंसेप्ट क्या है. इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, आप इसको समझ जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू डू द होल थिंग ऑन योर ओन. तो जब आप एक और गेन करते हैं, तो यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट जो है, अगेन हाउ मच ही इज लूजिंग हियर. So he came from here to here, 2 units. So यहाँ पे कितने हुए, 2 units. तो यहाँ पे sacrifice कितना किया इसने, 2 units to gain 1. This is 6 to 1. आप रेशो देख रहे हो, तो यहाँ पे 6 है और 1 है, यहाँ पे 2 है और 1 है. And then he goes on the third one, so the last one, 4 units जो उसने लिया है, and then this is 3. तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ है, 1 only. So this sacrifice is 1 to 1 to gain 1. तो स्टीप तब होता है कि जब इनिशियली द लॉजिक कम्स हियर ऑफ द मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो हमने यूज किया था, कि जब इंसान के पास ज्यादा होता है कुछ कोई भी चीज है ना नंबर्स की, देन ही लेट इट गो, क्योंकि ही इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद इट, ही डजंट वांट इट एनीमोर. दैट्स व्हाई जब उसने एक यूनिट बढ़ाना था, तो ये से ओके ओके 6 यूनिट्स में देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा ऑरेंज मिल रहा है, मैं 6 बनानास देने के लिए तैयार. तो ही वाज रेडी फॉर दैट. पर जैसे ही अब उसने एक और यूनिट बढ़ाना था, अब उसको एक यूनिट मिला, एक यूनिट और लिया, उसको थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन ऑरेंज में हो गई है, राइट. तो अब ये थोड़ा सा गिरने लगा, इसे नो नो, अब इस टाइम मुझे एक यूनिट लेना है, तो मैं 6 बनानास तो नहीं दूंगा. मैं कितने बनानास दूंगा, यहाँ पे 2 बनानास लेट इट गो कर सकता हूँ. 2 बनानास में एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस कर दूंगा, तो मैं 1 ले सकता हूँ, ठीक है ना. तो जो उसकी सब्स्टिट्यूशन रेट है, अब 6 से 2 हो गई, क्योंकि उसका जो बनानास थे वो कम हो रहे हैं. जब चीज कम होती है, तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या होता है, बढ़ने लग जाता है. अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, है ना. यहाँ पे ज्यादा था तो कम हो रहा था, यहाँ पे और कम हो रहा है, तो उसका जो रेट है वो कम होता जाएगा. अब यहाँ पे क्या है कि जब वो थर्ड यूनिट लेना चाहता था, तो फिर उसने कहा नो भाई. अब क्योंकि उसकी ऑरेंज की सेटिस्फेक्शन भी पूरी होती जा रही है, राइट. सो ही सेड ओके ओके, मुझे एक के लिए मैं एक ही दूंगा, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं जितना मेरा कॉम्बिनेशन आई एम हैप्पी विद दैट. सो देन ही विल गो विद ओके फाइन, आई विल गो विद 1, राइट. सो ऐसे ऐसे करते जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, it becomes steeper in the initial stage, then it becomes very subtle and slopey. तभी ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स बन जाती है. तो इंडिफरेंस कर्व का जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये भी बहुत मेन है. इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ वेरी कॉन्वेक्स इन नेचर, ऐसे बनती है. और इसी कारण बनती है कि इट्स वेरी वेरी इनिशियल स्टेज पे इट्स वेरी लाइक गो वेरी स्ट्रेट, कि हाँ भाई इट्स राइट वे डाउनिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि इज रेडी टू गिव अप.
क्योंकि वो बहुत सारे जो यूनिट्स है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है. बट एज ही स्टार्टेड गोइंग डाउन, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो थ्योरी यहाँ पे पॉपअप होती है कि वो बंदा जैसे ही उसकी यूनिट्स कम होने लगेगी तो उसकी सेटिस्फेक्शन का जो वो है वो बढ़ने लग जाएगा. ऑन द अदर वे, अगर उसके पास ज्यादा यूनिट्स हो तो उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती, सो ही कैन लेट इट गो. सो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा कि वो कितना सब्स्टिट्यूट करेगा as he go. So initially he will substitute for more, then he will go for less, and so on, so forth. So ये ऐसे चलता है. तो अगर आप इसको मार्जिनल रेट का ऐसे बना सकते हैं ना, you can just see. You see that? 6, 2, 1. I think it's very much clear. It's very simple. इससे ज्यादा तो इसमें कुछ अंडरस्टैंड करने वाली बात नहीं है. अब इससे नेक्स्ट पॉइंट्स हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज और है जो मैं अभी ही क्लियर कर देती हूँ. So ये तो हो गया एक स्केड्यूल, राइट. तो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए A, B, C and D. ठीक है. ऐसे हम कितने भी स्केड्यूल्स बना सकते हैं बेस्ड ऑन these kind of schedules for different commodities also. तो उनका जो indifferent difference curve होगा, it will go like this. You can make any number of that. उनका combinations जो होगा, schedule जो होगा वो different होगा. It's just like this one. ठीक है. Nothing more. अब जब इतनी सारी IC indifferences का 1, IC2, IC3, IC4 बन जाती है, this is called family of indifferences curve, and this is also called indifference map. In other words, indifferences kind of, it's a family of so many indifferences curve, right? Or in other words, we can call it also indifference map. क्योंकि अच्छा दूसरी चीज इसमें ये भी है कि मान लिया अगर आपका पॉइंट ये था 12, he was consuming 1, right? Now at this point आप देखो जो बनाना है is getting 12, but he is getting orange at 2. Same point. So इसका मतलब क्या है कि अगर I indifferences curve इसके above हो तो utility और ज्यादा होगी, हायर होगी, उसमें यूनिट्स ज्यादा होंगे, राइट. रिमेंबर दैट. सो टोटल सेटिस्फेक्शन उससे ज्यादा होगा. ऑलवेज रिमेंबर. सो एज यू गो हायर एंड हायर, इट विल गो हायर एंड हायर. सो ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए. अब हम इसके करते हैं प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इट्स अ कॉन्वेक्स इन नेचर. जो इंडिफरेंसेस कर्व है दैट इज कॉन्वेक्स इन नेचर, as I just told you, and the reason I told you कि भी क्यों है convex in nature. ठीक है. You need to know that. दूसरा है कि इस downward sloping from left to right. दूसरा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसको प्रॉपर्टीज भी मैं लिख दूं यहाँ पे कि हरदम ये राइट से लेफ्ट की तरफ को ही होगा. दिस इज ऑल्सो द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड क्या है? जो डिफरेंस कर्व्स हैं never intersect each other. जो इंडिफरेंसेस मान लिया अगर एक और यहाँ पे आ जाए तो ये कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि फिर जो हमारा assumption है that doesn't apply, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो जाएंगे, राइट. दोनों कर्व्स के एक में हो सकता है ज्यादा हो और एक में कम हो. सपोज अगर ये ऐसे ऐसे क्रॉस करती होगी, फॉर एग्जांपल इंटरसेक्ट लाइक दिस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो मान लिया ये पॉइंट के ऊपर
let's say this is 8, this is 1.5 oranges. तो ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर चाहे आप IC1 में है चाहे आप IC2 में है, योर satisfaction will be same जो कॉम्बिनेशन का है. अब जो इंडिफरेंसेस कर्व थ्योरी है, इसके हिसाब से तो जो इंडिफरेंसेस कर्व है, जैसे जैसे एक्स्ट्रा आती जाएगी आपकी जो सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशंस का है वो ज्यादा होता जाएगा, राइट? तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है. सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल एट ऑल. सो मेक श्योर कि इट डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर. इसको रब कर देती हूँ so that you guys don't get confused. चौथा क्या है? I see never touch the axis. जो इंडिफरेंसेस कर्व है, जो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट नेवर टच द एक्सिस. ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करती है, नीदर इट टच द वाई एक्सिस, नीदर इट क्रॉसेस इट. सो ये हरदम इस ग्राफ में रहेगी, इट नेवर टचेस इट और नेवर क्रॉसेस इट. बिकॉज अगर लेट्स से टच करती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कहते हैं कि ये ऐसे आ गई, फॉर एग्जांपल I'll just explain to you why. मान लेते हैं कि ऐसे टच करेंगे, ऐसे. Think now what's happening here. इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ग्राफ को. सो इसमें क्या हो रहा है? When it reaches here, what's happening? He is getting oranges this much. 4 oranges के करीब उसे मिल रहे हैं. But how much is banana here now? So banana is what? 0. Oranges are 4. जो हमारा टू डिफरेंसेस कर्व का टू कम्युनिटीज का रूल है, इट डजंट फॉलो अप हियर. हमारे बनानास 0 हो गए तो एक ही आइटम रह गया यहाँ पे खाने के लिए, राइट? जहाँ नहीं भी खाना हो सम अदर आइटम, तो हमारे एक ही आइटम रह गया ऑरेंजेस. सो इट डजंट गो विद द रूल ऑफ और द अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी कि हमको हरदम सेकंड आइटम भी चाहिए, सेकंड कम्युनिटी भी चाहिए. So as soon as it touches the axis, चाहे इधर कर ले, so one community is out of the picture, only one left. So that is not possible either. So इसीलिए I see जो indifferences curve है, it should never touch the axis. Neither it can be negative, right? Same logic applies. और चौथा होगा, पांचवा सॉरी, gets higher satisfaction with higher RC curves. ये तो नॉर्मल नेचर है बंदे की, जितना आप किसी चीज को ज्यादा ले सकते हैं आप उसकी तरफ जाएंगे, राइट? सो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिफरेंसेस कर्व ये है और ये है और ये है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट वी वुड लाइक टू गो ऑन द एक्सट्रीम. सो जैसे जैसे इंडिफरेंसेस कर्व ऊपर जाती जाएगी, आपकी सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा जाती जाएगी, क्योंकि आपको क्वांटिटी अब ज्यादा मिलती जा रही है एज वी गो इनटू द हायर इंडिफरेंसेस कर्व. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको याद कर लो. इट्स कॉन्वेक्स इन नेचर, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फिर आगे कि IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इट नेवर touch or cross the axis, and secondly as the IC goes on each other, above each other, the satisfaction goes more and more. तो ये होगी प्रॉपर्टीज. अब बात करते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है. इसलिए सारा मिटा रही हूँ because I don't need that now. चलो, तो अब हम कर रहे थे एक्सेप्शंस. सो जैसे exceptions to the indifferences curve analysis is only 2.
पहला तो होगा कि दिस इज अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दूसरा है इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो हमने एमआरएस के बारे में पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंसेस कर्व एनालिसिस। ये ही डिसाइड करता है कि देखो जो हमने अभी तक पढ़ा था दैट वाज द इम्परफेक्ट, राइट? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मैंने बोला था, मैंने बताया भी था। You can remember something like this. So generally जो indifferences curve analysis है, ये applicable होता है when it's an imperfect substitution. तो उसमें जो MRS है, that is a marginal rate of substitution, basically you are letting go or sacrificing one unit to gain something different, right? So it's kind of, you know, you're sacrificing and you're gaining. In general, it's always downward sloping. जो उसकी इंटेंसिटी है, like it's first of all, remember जब हमने schedule किया था, it was very steep, then it become very, you know, little kind of slopey, मतलब इतना steep नहीं रह गया था, ठीक है ना? पहले वो बिल्कुल बुरी तरह से गिरता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल फ्लैटर सा हो जाता है। तो एमआरएस है वैसे, बट इट्स डाउनवर्ड, उसकी जो रेशियो है पहले वो 6 होगी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, समथिंग लाइक दैट, राइट? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि जो एमआरएस है, दिस वन, दिस इज कांस्टेंट, फिक्स्ड। आपको जो यूटिलिटी है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आराम से मिल जाएगी। अब इसका हम जैसे अगर ड्रॉ करें, एक स्केड्यूल ड्रॉ कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर। मान लिया कोई कम्युनिटी ए है, बी है, प्लस या ए एंड बी रखते हैं हम, दिस इज कम्युनिटीज, और वी हैव प्रेफरेंसेस हैं, जैसे 4 हो सकती हैं, सॉरी, या तो यहाँ पे आप नोट करो कि डिफरेंस कितना है, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, चलो 1, ठीक है? So this is your MRS, which is constant. तो ये कॉम्बिनेशन A, कॉम्बिनेशन B, कॉम्बिनेशन C, कॉम्बिनेशन D, कॉम्बिनेशन हो गया। अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूंगी जैसे, तो ये कम्युनिटी B हो गई, ये कम्युनिटी A, let's say 1, 2, 3, 4 and 5. This is 2. So 2, 4, 6 and 8. अब फर्स्ट अगर ये कम्युनिटी को मैं लेती हूँ, so it's 1, so it's 1 and 8, so 1, 8. दूसरी की कौन सी है, 2 and 7, so that should be here, 2. Third is 3 and 6, and then 4 and 5. 4 is A and 5 is M. If I draw that, so it becomes a very straight line. So when it's a perfect substitute, तो अगर एक आपने रेशियो देखी, they go let go 1, sacrifice, so this is 1, they gain 1, this is gain, and this is a loss. Sorry, this is my dog. So second item may be same thing, right? 1 here, again 1 here, 1 here, 1 here. So basically जो marginal rate of substitution है यहाँ पे, that is constant. So even though he is increasing, अगर एक unit extra होती है, he just want to go let go 1 unit from the other side.
So then it becomes a perfect straight line. It's not a convex in nature. So ये exception इसमें rule होगा when it's a perfect substitution. दूसरा complementary. Complementary होगा कि one unit is nothing without the second one. कि भी आपकी जो दूसरी यूनिट है, जो दूसरी कम्युनिटी है, सॉरी, वो पहले के कंपेयर में यूजलेस है. जैसे आप शूज पहनते हो, लेफ्ट शूज है, राइट शूज है, राइट, लेफ्ट एंड राइट टुगेदर चलता है. तो अगर एक आप पहन के चले जाओगे तो इट्स यूजलेस. तो उसी तरह से कई एग्जांपल ले सकते हो. कप एंड सॉसर हो गया, कोई लिक्विड है, यू पुट इट इन अ वाटर और अ सोडा, यू नो, एनी कॉम्बिनेशन दैट डजंट गो अलोन. तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है कि यू हैव टू गो टुगेदर. इन दिस केस MRS क्या होगा? 0. क्योंकि एक, अगर उसके पास दो, मान लिया उसने एक लेफ्ट शूज लिया हुआ है, एक राइट लिया हुआ है, ठीक है. अगर उसको सारे राइट शूज पकड़ा दिए जाएं और उसके पास सिर्फ एक लेफ्ट हो, क्या उसके वो जो बाकी के लेस से उसके पास 9 उसको एक्स्ट्रा दे दिए, क्या उसके काम के होंगे? वो उसके काम के नहीं होंगे. इट्स यूजलेस. इज नॉट गोइंग टू हैव दैट, राइट. वो 1 to 1 के कंपैरिजन में ठीक रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो डिफरेंसेस कर्व होती है वो एल शेप में रहेगी ऑलवेज, because the marginal rate of substitution 0 है, that's why. So अगर मान लिया ये this is x and this is y and this is A community and this is B community and this is a left shoes कर लो चलो आप, and this is a right shoe. तो कहने का मतलब ये कि अगर उसके पास एक लेफ्ट है तो एक राइट, इसमें ही विल फील वेरी सेटिस्फाइड. अगर एक उसके पास लेफ्ट है तो आप उसको 2 दे दो, राइट, 2 दे दो, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो चेंज नहीं होगा. इट्स गोइंग टू बी 0. चाहे उसको 3 दे दो, 3 दे दो आप, तब भी उसका सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होगा. सो इट डजंट मैटर. सेम थिंग सेम विल अप्लाई हियर. अगर उसके पास एक राइट है तो आपने उसको लेफ्ट दे दिया, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. सो दैट्स व्हाई द जो कर्व जो है वो एल शेप में होते हैं. इट्स ऑलवेज कॉन्वेक्स इन नेचर टू. थोड़ी सी उस साइड को उसका फेस रहता है. हाँ, अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा मतलब लेफ्ट भी दे दिया जाए और उसको राइट भी दे दिया जाए, something like that, he comes here with the second option, right? तो फिर उसकी satisfaction ज्यादा हो जाएगी, IC2. Then maybe he can jump from this to this. But on the same curve, उसको जो utility जो marginal rate of substitution है that is 0, so that's why he is not going to move with no utility to him. So ये हो गया complementary goods का explanation. तो अब हम बात करते हैं, इट्स अ वेरी लास्ट वन, assumptions. वैसे तो assumptions स्टार्टिंग में आनी चाहिए of any theory when you started, but I didn't wanted you guys to get confused, so मैं बाद में लेके आ जाऊँ. So assumptions क्या होंगी? पहले तो assumptions के बिना कोई theory चल नहीं सकती. पहले तो rationality ही है कि जो consumer है is very rational, he knows what he is doing. और दूसरा जो है, actually this is the second one, जो second point है, this is the foundation of the consumer behavior, जिसके ऊपर consumer behavior lie करता है. that is कि जो consumer है, he knows his taste, and preferences, and he also knows about the market. मतलब उसको सब पता है, वो लल्लू नहीं है, उसको ये नहीं है कि वो नाइट नहीं है कि उसको कुछ भी पता नहीं है. सो ये अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर को अपने टेस्ट, अपने प्रेफरेंसेस और उसकी मार्केट के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है. दिस इज अ फाउंडेशन पॉइंट एक्चुअली फॉर कंज्यूमर बिहेवियर. तीसरा क्या होगा कि ये भी अज्यूम किया जाता है इन डिफरेंसेस कर्व एनालिसिस के ऊपर, जिसको बोलते हैं टेंटेटिविटी. इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को बेटर समझता है बी से, ठीक है, तो अगर वो समझता है बी प्रोडक्ट को बेटर सी से, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 सिनेरियोस कि भी अगर कंज्यूमर कहता है कि ही प्रेफर्स ए कंपेयर टू बी एंड देन सेकंड ऑप्शन ही कंपेयर्स बी टू सी, सो थर्ड ऑप्शन जो होगा, ही विल ऑलवेज प्रेफर ए टू सी. हरदम वो ए का
ए प्रेफर करेगा सी से, ये भी एज्यूम किया जाता है। फोर्थ है कि हायर यूनिट्स हायर सेटिस्फेक्शन, ये तब किया जाता है, दिस इज अ ह्यूमन नेचर। आपको जब ज्यादा गुड्स मिलते हैं आप ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर, ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, राइट? तो जहाँ पे ज्यादा मिलता होगा आप वहां पे जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द assumptions इन द आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। और अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। आई विल टेक अनदर लेक्चर मे बी उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए, बिकॉज फॉर मी मुझको लगता है कि मैंने बहुत ढंग से समझा दिया, बट आई नो फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट नो आपको कितना समझ में आया कि नहीं आया। और लास्टली कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे प्लीज मैम फटाफट आप अकाउंटिंग के ऊपर लेक्चर्स बनाएं। डेफिनेटली मैं अकाउंटिंग के ऊपर लेक्चर्स बनाऊंगी, पर आई जस्ट वांटेड टू फिनिश दिस चैप्टर फर्स्ट, ताकि एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का खत्म हो जाए तो उसके बाद हम अकाउंट्स का एक चैप्टर ले लेंगे। सो मैं, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक्स, बाय।